محترم ناظرین، دودھ بیچنے والی حافظ قرآن لڑکی پر اللہ کا عذاب کیوں برسا؟ جب اس کا انتقال ہوا تو مرنے کے بعد اس کے 14ویں رات کا چاند کی طرح چمکنے والا چہرہ سیاہ کیوں ہو گیا؟ جنازے کے وقت اس کی لاش، اس کی میت بھاری اور وزنی کیوں ہو گئی؟ لوگ جب اس کی تدفین کرنے لگے تو اس کی قبر میں لوگوں نے ایسی کون سی چیز دیکھی جسے دیکھتے ہی سب لوگ استغفار پڑھنے لگے؟ اور اس کی تدفین کے 10 دن بعد اس کی قبر کیوں پھٹی؟ ان تمام سوالات کی تفصیل میں آج کے اسی بیان میں بتاؤں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، سب سے پہلے تو میں شکر ادا کرتی ہوں اور اس پروردگار عالم کا جس نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ دی، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، اور یہ بھی شکر ادا کرتی ہوں کہ آنکھیں، زبان اور کان دینے کے بعد انہیں اس قابل بنایا کہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، کیونکہ یہ آنکھیں نابینا کے پاس بھی ہیں مگر وہ اس میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، کان بہرے کے بھی ہیں مگر وہ سن نہیں سکتے، یہ زبان گونگے کے منہ میں بھی ہوتی ہے مگر وہ اس سے بول نہیں سکتا، یہ زبان گونگے کے منہ میں بھی ہوتی ہے مگر وہ اس سے بول نہیں سکتا، اس میں بولنے کی صلاحیت موجود نہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، آج اگر میری ایک پلک کے بال جھڑ جائیں تو میں اسے پلک پر بال لانے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپیہ لگا دینے کی تیاری کی ہے۔ کسی نہ کسی طرح میری اس پلک پر بال آ جائیں، کسی نہ کسی طرح یہ میرا عیب ختم ہو جائے۔ ایک پلک کے لیے بال لانے کے لیے لاکھوں کروڑوں لگا دینے کو تیار تھے۔ میری پیاری بہنوں، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ دل، جگر، گردے، پھیپھڑے کو یہ قیمتی مٹیریل ہیں جو لاکھوں کروڑوں سے بھی زیادہ افضل ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ مہنگے ہیں، یہ لاکھوں کروڑوں میں ہمیں نہیں مل سکتے۔ ایک چھوٹی سی پلک کے بال اس کے اوپر لاکھوں کروڑوں لگ جاتے ہیں، اور یہ اتنا بڑا جو قیمتی مٹیریل، مزے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت میں عطا کر دیے۔ اتنا بڑا قیمتی مٹیریل ملنے کے بعد کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم شکر الہی بجا لائیں، ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری کریں؟ اس نے ہمیں اتنا قیمتی مٹیریل مفت میں عطا کر دیا۔ پیاری بہنوں، اب چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا خوبصورت سا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جسے سننے کے بعد آپ توبہ کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے، اور وہ توبہ جسے کرنے کے بعد ہر لڑکی اس طرح پاک و صاف ہو جاتی ہے جیسے اس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ واقعہ عبرت ناک ہے۔ اس واقعے نے آج سے پہلے لاکھوں کروڑوں لڑکیوں کی، نوجوان لڑکیوں کی، عورتوں کی زندگی بدل ڈالی۔ پیاری بہنوں، ایک غریب شخص تھا، اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، اس نے پوری زندگی لاکھوں دعاؤں کی، دعائیں کرتا رہا، منتیں مانگتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی سوکھی جھولی کو بھری نہیں، کیا اسے اولاد کی نعمت سے مالا مال نہیں کیا، محروم رکھا۔ وہ ساری زندگی دعائیں بھی کرتا رہا، روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی بھی فریاد نہ سنی۔ نہ جانے اسے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی یا اس کے علاقے میں وہ جو ہے بے اولاد شخص تھا، اس کے علاقے میں ایک زانیہ عورت رہا کرتی، اس کے لوگوں کے ساتھ غلط تعلقات تھے، وہ غیر محرم سے مردوں کے ساتھ گناہ کیا کرتی تھی۔ ایک بار اس نے کسی غیر محرم مرد کے ساتھ تعلق قائم کیا، اس کے ساتھ گناہ کیا، اس کمبخت گناہ کی وجہ سے اسے حمل ہو گیا، حمل ٹھہر گیا، مطلب وہ جو تھی وہ ماں بننے والی ہو گئی۔ پورے 9 ماہ اس نے اذیت کو برداشت کیا، اور کسی اذیت پا کر اس نے ایک بیٹی کو جنم لیا، بڑی ہی خوبصورت بیٹی کو جنم دیا۔ وہ اس سے پہلے کہ اس کے گلے پر انگوٹھا رکھ کر اس کا گلا دبا کر اسے مار دیتی، اچانک اس سوچ نے اس کو دماغ میں گردش کی، اس کے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ اسے کسی ویرانے میں جا کر پھینک آتی ہوں۔ جیسے یہ خیال آیا تو اس نے اسے مارنا مناسب نہ سمجھا، اس نے سوچا کہ جب اسے ویرانے میں پھینک دوں گی تو ایک تو میرا گناہ چھپ جائے گا، اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے اس نے سوچا کسی کو چھوڑ دیتی ہوں کسی ویرانے میں، تاکہ وہاں سے اسے کتے یا بلیاں کھا جائیں، میرا گناہ بھی چھپ جائے گا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، اب رات کا وقت آیا، رات کے وقت اس نے اس چھوٹی سی ننھی منی جان کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور گھر سے باہر چل پڑی۔ کیا کرنے جا رہی ہے؟ بچی کو ویرانے میں چھوڑنے جا رہی ہے۔ یا اللہ، جو اللہ کی رحمت ہوتی ہے اسے اپنے گھر سے باہر نکال کر کسی ویرانے میں چھوڑنے جا رہی ہے جہاں کوئی آدم زاد نہ ہو۔ پیاری بہنوں، یہ چلتی گئی اور کافی دور جا پہنچی۔ رات کا دوسرا پہر آ گیا جب اسے ایک ویرانہ نظر آ گیا، کافی اندھیرا تھا، اندھیرے کی وجہ سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک ویرانے میں اس بچی کو پھینک کر اپنے گھر کی طرف واپس چل پڑی۔ اب وہ ننھی سی بچی وہاں رات کے اندھیرے میں روتی رہی، تڑپتی رہی، وہاں کوئی تھا ہی نہیں جو اسے اٹھاتا۔ خیر، صبح کا سورج طلوع ہوا، جیسے ہی مرغ نے اذان دی تو یہ جو شخص تھا یہ اسی کے گھر کے قریب ہی پھینک کر گئی، جو ویرانہ تھا، ویرانے میں صرف اسی کا گھر تھا تو اس کے گھر کے سامنے پھینک کر گئی تھی۔ جیسے ہی صبح کا مرغ نے اذان دی تو وہ شخص نے اپنے کام کے لیے
सिलसिले में घर से बाहर निकला, अपने घर के चार दीवारी से बाहर निकला। जैसे ही ये बाहर निकला तो उसे किसी छोटे से बच्चे की रोने की आवाज आई। उस आवाज को सुनते ही एक बार उसका दिल तड़प गया, क्योंकि उसके औलाद न थी। एक बार तो दिल तड़पा, लेकिन दूसरी बार उसके सीने में उसके जान में जान आ गई, क्योंकि उसके कान में एक छोटे से बच्चे की आवाज सुनने के लिए तरस रही थी। जैसे ही उसने रोने की आवाज सुनी तो 2-4 कदम आगे चला। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, ये बच्चे की आवाज कहाँ से आ रही। थोड़ी दूर उसकी नजर जब गई, उसने देखा जमीन पर एक नन्ही सी बच्ची पड़ी हुई है, जो लावारिस, उसका कोई वाली वारिस नहीं, अकेली जमीन पे पड़ी रो रही है। ये भागकर उस लड़की के पास गया। उसने जल्दी से उसे दोनों हाथ से उठाकर सीने से लगा लिया। जैसे ही उसने अल्लाह की रहमत को उठाकर सीने से लगाया तो उसकी जान में जान आ गई। उसे एक बार अपनी रोशनी जिंदगी में नजर आई, उसे अपना मुस्तकबिल रोशन होता नजर आया। उसने सोचा कोई बात नहीं, अगर अल्लाह ने मुझे औलाद नहीं दी तो औलाद तो मुझे मिल गई, मेरी खाली झोली तो भर गई। उसने उस बच्ची को उठाया और अपने घर लेके गया। आगे उसकी बीबी नमाज पढ़ रही थी। उसने जल्दी से अपनी बीबी के पास बुलाया, कहा, अल्लाह की बंदी, अल्लाह ने तेरी दुआएं सुन ली है। अल्लाह ताला ने तुझे औलाद की नियामत से माला माल कर दिया, तेरी सूखी झोली को भर दिया, खाली झोली को भर दिया। जल्दी से आओ और इस बच्ची को उठाओ। औरत जल्दी से भाग कर आई। जब उसने छोटी सी नन्ही सी जान को देखा तो उसकी भी जान में जान आ गई। जल्दी से उसने बिस्मिल्लाह करते हुए उस छोटी सी बच्ची को अपनी गोदी में ले लिया। जैसे उसने अपने सीने से लगाया, उसे एक बार यूं महसूस हुआ जैसे वो कभी बे औलाद थी ही नहीं। खैर, उस बच्ची को पालने लगी। उसने अपनी औलाद समझकर उसकी भी बहुत अच्छी परवरिश की, उसे अच्छे से अच्छा खिलाया, अच्छे से अच्छा पिलाया। वो जो गरीब शख्स था वो सुबह सवेरे घर से बाहर निकलता, पूरा दिन मेहनत मजदूरी करता और अपनी छोटी सी बेटी की सारी जरूरतें अपने से ज्यादा अच्छा पिलाता खिलाता था। खैर, बच्ची बड़ी, जब जवानी के दहलीज पर उस लड़की ने कदम रखा तो वो लड़की इस कदर खूबसूरत बनी कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाती। जो शख्स उन्हें एक बार देखता तो बार बार देखने की ख्वाहिश रखता था, कोशिश करता था, तमन्ना रखता था। इस कदर वो हसीन और जमील थी, उसी के दीवाने हो जाते। वो लड़की बड़ी बड़ी खूबसूरत भी थी, उसके अच्छी परवरिश भी हुई थी, मगर बदकिस्मती से वो 3 गुनाह बड़े शौक से किया करती थी। वो कोई लड़की थी, वो तो गोया चांद का टुकड़ा थी। वो इतनी हसीनों से जमील थी, उसका चेहरा चौंधवी रात का चांद की तरह चमकता, फूल जैसा उसका नरम नाजुक बदन था, बड़ी ही खूबसूरत थी। तो मगर किस्मत से वो 3 गुनाह बड़े शौक से किया करती। जब वो बड़े ही शौक से वो 3 गुनाहों से आदी बनी हुई थी। वो 3 गुनाह कौन से थे ये मैं आपको आखिर में जाकर बताऊंगी। इससे पहले ये बताती चलूं कि इन 3 गुनाहों की नहुसत कैसी पड़ी। इन 3 गुनाहों ने उसकी लड़की की जिंदगी तबाह कैसे, उसकी जिंदगी में कौन सी तबाही मचाई। तो मेरी प्यारी बहनों, जो ये 3 गुनाह किया करती थी, शौक से करती थी, इन 3 गुनाहों ने उसकी उम्र में से बरकत छीन ली। जैसे उन गुनाहों ने उसकी उम्र से बरकत छीनी ने तो जल्दी ही वो फौत हो गई। अभी वो कुंवारी नहीं थी, उसकी शादी नहीं हुई थी, वो फौत हो गई, वो मर गई। वालिदैन को बड़ा रंज हुआ, उनकी इकलौती औलाद थी तो वो भी फौत हो गई। अब अम्मा ने उस लड़के को गुस्ल देने के लिए जैसे ही फटरे पे लेटाया तो माँ की आंखें देखती ही रह गई। उसने अपनी खुली आंखों से देखा कि उसके चेहरा जो था, वो जो चौदह रात की चांद की तरह चमकता था, वो अचानक स्याह हो गया। जो महसूस होता था जैसे चांद के आगे काले बादल छा गए। उसके जो चेहरे की सफेदी थी वो खत्म हो गई, वो स्याही में बदल गई, उसके चेहरे की रंगत जायल हो गई। प्यारी बहनों, उसे जल्दी से गुस्ल दिया गया। गुस्ल देकर जब उसका जनाजा उठाकर कब्रिस्तान की तरफ जाने लगे तो बाप ने महसूस किया, मेरी फूल जैसी बेटी जो कि मैयत है और वो बहुत ज्यादा भारी हो चुकी है, वो बहुत ज्यादा वजनी हो चुकी है। खैर, बाप था, उसने महसूस तो कर लिया, लेकिन जनाजा कब्रिस्तान में लेकर जाना था, इसलिए उन्होंने कोशिश करके उसकी मैयत को बड़ी मुश्किल से उठाया। कम अज कम 20 आदमियों ने उसकी मैयत को कंधा दिया और उसे कब्रिस्तान लेकर गए। अब जैसे ही जाकर कब्र खोदने लगे तो उन्होंने एक कब्र को उसके अंदर सांप और बिच्छू बैठे हुए थे। लोग बड़े ही हैरान हुए कि ये तो हाफिज कुरान लड़की थी, इसके बाप ने बड़े ही शौक से उसे हिफ्ज करवाया था। तो खैर, उसकी एक जब कब्र खोदी तो उसके अंदर सांप और बिच्छू देखे, उसे जल्दी से बंद कर दिया। अब दूसरी कब्र खोदने लगी, जैसे ही दूसरी कब्र खोदी तो सांप और बिच्छू दूसरी कब्र में भी थे। अब तीसरी कब्र जगह खोदी गई तो लोग देखकर हैरान रह गए, लोगों की आंखें फटी के फटी रह गई। उन्होंने क्या किया, क्या देखा, वही सांप जो पहली कब्र में था, वही बिच्छू जो पहली कब्र में थे, वही भी इसी तरह कब्र के अंदर भी छोड़ दो। अब उन्होंने तीसरी कब्र बंद की। चौथी कब्र जो खोदने लगे तो वहां से अल्लाह वाले का गुजर हुआ। उसने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? ऐसे शख्स ने बताया कि मेरी बेटी का इंतकाल हो गया, हमने 3 जगहों पर उसके लिए कब्र खोदी मगर वो नाकाम रही, उसके अंदर सांप और बिच्छू थे। अब
चौथी जगह बन रही है। उस अल्लाह वाले ने कहा आप चौथी अब पांचवी भी अब सोचो, आप 100 जगहों पर भी कब्र खोद लें फिर भी ये सांप और बिच्छू वहां भी पाओगे, लिहाजा तुम कब्र में सांप और बिच्छू के साथ इस लड़की को तदफीन कर दो। ये कुछ और नहीं है, ये तो अल्लाह का अजाब है, उसके गुनाहों की सजा है जो इसे अभी मिल रही है। खैर उन्होंने उसकी कब्र के अंदर उसके तदफीन कर दी। उसका बाप बड़ा ही परेशान था, बड़ा ही हैरान था। मेरी बेटी ने ऐसी कौन से गुनाह कर दिए जिन गुनाहों की वजह से आज उस पर अल्लाह का इतना बड़ा अजाब नाजिल हुआ। वो जल्दी से घर पहुंचा। घर जाकर अपनी बीवी से पूछने लगा, आओ मेरे शरीके हयात मुझे इतना बता दे, तेरी बेटी ऐसे कौन से गुनाह किया करती थी जिनकी वजह से आज उसे लोगों के लिए इबरत का निशान बना दिया। मैं तो उसके गुनाहों से जरा भी वाकिफ नहीं हूँ, अब तू ही बता वो कौन सा गुनाह किया करती थी। उस औरत ने कहा, मेरी बेटी 3 गुनाह बड़े शौक से किया करती थी। वो 3 गुनाहों की आदी थी। मैं क्या करती, मैं उसे मना करने की कोशिश तो करती थी मगर वो रुकती नहीं थी। उस औरत ने कहा, मेरी बेटी का पहला गुनाह जो था वो ये था कि एक बादशाह का बेटा शहजादा जो था उस पर फरिश्ता हो गया। उसका हुस्न देखकर उसका दीवाना बन गया, उसका आशिक हो गया, उससे बड़ी मोहब्बत करता था उसे। अब मेरी बेटी उसके साथ मोहब्बत करती और शहजादा मेरी बेटी के साथ मोहब्बत करता। वही दोनों आपस में मोहब्बत करते थे। आप चूंकि अपने काम की वजह से घर से बाहर रहते थे तो वो जो शहजादा था वो हमारे घर आता, पूरी पूरी रात मेरी बेटी के साथ गुजारा। सार कर ये एक दूसरे के साथ गुनाह भी किया करते थे और मैं उन्हें रोकने की काफी कोशिश करती थी। लेकिन वो जो शहजादा था वो बहुत बड़ा अमीर था। उसने मुझे धमकी लगा रखी थी कि अगर तूने उसके बाप को जरा से भी कानों की खबर होने दी तो मैं तुझे जान से मार डालूंगी। मैं अपनी जान को बचाने के लिए खामोशी में मैंने तेरे साथ नहीं बात का जिक्र नहीं किया। उसका पहला गुनाह तो ये था और गैर महरम मर्द के साथ गुनाह किया करती थी, उसके साथ ताल्लुक बढ़ाया करती थी। उसके बाद उस औरत ने कहा, मेरी बेटी का दूसरा गुनाह ये था, ये हाफिज़े कुरान तो थी, उसने कुरान तो हिफ्ज किया हुआ था, लेकिन जब अजान होती तो वो नमाज पढ़ती थी। मैं उसे नमाज पढ़ने के बारे में जब अजान होती तो वो नमाज नहीं पढ़ती। मैं उसे नमाज पढ़ने के बारे में जब कहती थी तो कि मैं अल्लाह को तो मानती ही नहीं, वो सजदा क्यों करे। उसने कुरान हिफ्ज कराया हुआ था, ये कुरान पढ़ती भी थी, लेकिन जैसे ही उसका गैर महरम के साथ ताल्लुक बढ़ा, जैसे उसके साथ गुनाहों की लत पड़ी तो कुरान को भूल बैठी। अस्तगफिरुल्लाह। जिना जैसे गुनाह ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसे कुरान भी भुला दिया तो ये नमाज नहीं पढ़ती थी, उसका खात्मा ईमान पर नहीं हुआ। उस शख्स ने कहा, अच्छा मतलब कि ये कुफ्र की हालत में मरी है। कुरान भी पढ़ा लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाई। उसकी बीवी ने कहा, जी जी जनाब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसने कहा, कुछ तीसरा गुनाह बताओ। उस औरत ने कहा, उसने तीसरा गुनाह था जब वो आपके घर में दूध लेकर आते तो वे उस दूध को अंदर पानी की मिलावट किया करती थी। मैं उसे रोकने की बड़ी कोशिश किया करती थी लेकिन वो मेरी एक ही बात सुनने के तैयार न। दूध के अंदर पानी की मिलावट करती थी, ये थोड़े से दूध के बहुत ज्यादा करती थी। ऐसे पैसों की लालच होती थी। ये सोचती थी कि अगर हम दूध ज्यादा बेचेंगे तो हमारे पास ज्यादा पैसे आएंगे। उस सोच के बिना पर ये दूध में पानी की मिलावट करके लोगों को नुकसान करती थी। तो उसमें ये 3 गुनाह है जो ये मेरे ख्याल में उन्हें 3 गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला ने उस पर अजाब नाजिल फरमाया। अब उसकी तदफीन के जैसे ही 10 दिन गुजरे तो 10 दिन के बाद उस लड़की की कब्र पड़ गई। अंदर से वो लड़की चीखे मार रही थी लेकिन उसका कफन फट चुका था। उसके चेहरे पर, उसके जिस्म पर कफन नहीं, उसके जिस्म का जो गोश्त था वो उसका सर झुका। कीड़े खा रहे थे, बिच्छू खा रहे थे, उसे सांप डंक मार रहे थे। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी उसके करीब जाकर उसे अजाब से बाहर निकाल दे। अब लोगों ने उसकी माँ से जब गुनाह पूछे तो उसकी माँ ने यही 3 गुनाह बताए। मेरी बेटी के 3 गुनाह ने बड़े ही शौक से करती थी। अब वो तीनों गुनाहों की आदी थी। प्यारी बहनों, सब कुछ करना लेकिन ये 3 गुनाह न करना, कभी मत करना। ये 3 गुनाह आपकी जिंदगी बर्बाद करके आपकी जिंदगी में से बरकत छीन जाएगी, उम्र में से, रिस्क में से बरकत छीन जाएगी। आपके चेहरे की खूबसूरती को ज़ायल कर दिया जाएगा। अगर आपने अपने चेहरे पे हुस्न का लाना चाहती हो, कुदरती निफा लाना चाहती हो, कुदरती नूर लाना चाहती है तो खुदारा इन तीनों गुनाहों से जल्द अज जल्द तौबा कर ले। मेरी प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान पर करे, अल्लाह ताला हमें ईमान की मौत नसीब करे। हमारी बहनों, जब आपका खात्मा ईमान पर होगा तो आप दुनिया में भी कामयाब, अगली दुनिया में भी, इस जहान में भी कामयाब, अगले जहान में भी
کامیاب ہو جائیں گے۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ان 3 گناہوں سے بچنے کی کوشش عطا فرمائے، بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کے فرما بردار عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔